नमस्ते दोस्तों, आज हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सो कॉम्प्लीमेंट, ये जो कंसेप्ट है सेट थ्योरी में ऑलरेडी 11-12 क्लास में पढ़ा हुआ है। इसको रिवाइज कर लेते हैं। लेट एक्स बी अ मीट्रिक स्पेस एंड ई इज सबसेट ऑफ एक्स, then complement of E, which is denoted by E superscript में C है, E complement is the set of all points in metric space X which are not points of E, मतलब collection of P in X such that P does not belongs to E. For example, here X is a metric space as real number line and A is set of X lying between 1 to 5, means 1 is included but 5 is excluded. This is 1 5 and this is number line R metric space, and this set semi closed interval is A. Now its complement is the points which are not here, that means 5 यहाँ नहीं है, तो 5 से स्टार्ट करते हुए आगे जाएंगे। ये पूरा पोर्शन एन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 अप टू इन्फिनिटी इधर, और यहाँ 1 इंक्लूडेड है तो 1 को छोड़ते हुए एक्सक्लूड करते हुए इसके पहले के सारे पॉइंट्स, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक के जो नंबर्स होंगे, सेट नोटेशन में लिखा, उसको सेट नोटेशन में लिखा है फॉर दिस ए कॉम्प्लीमेंट इज कलेक्शन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक के हैं, एक्स इज लाइंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 1 और एक्स इज लाइंग बिटवीन 5 टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 5। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट of given set A. This OR must be inclusive OR, मतलब this and this is the definition. This is example of complement of a set E. यदि डायग्राम से देखें तो डायग्राम से समझ में आता है E के बाहर जो भी पोर्शन होगा, E के बाहर जो भी पोर्शन है, this is E complement, right? And next definition is perfect set. So let X be a metric space and E is subset of X. Set E is called perfect if E is closed and if every point of E is limit point of E. Means कोई सेट को परफेक्ट होने के लिए क्लोज्ड होना जरूरी है एंड एवरी पॉइंट ऑफ ई इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई। अच्छा, अब जरा समझते हैं, दो कंडीशन यहां दिख रही है। ई इज क्लोज्ड मतलब एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ई मस्ट बी पॉइंट ऑफ ई। हमने कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट को ई डैश से डिनोट किया था, मतलब ई डैश इज सबसेट ऑफ ई, ऑल लिमिट पॉइंट्स मस्ट बी पॉइंट्स ऑफ ई। ये हो गया क्लोज के लिए। अब हम बोल रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ ई इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई। इसका मतलब ई के सारे पॉइंट्स सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ई में होने चाहिए, मतलब दिस इज सबसेट ऑफ ई डैश। डिराइव सेट कहा था ना इसको, ई डैश को। अब जब दोनों एक साथ हो रहा हो, ई डैश इज सबसेट ऑफ ई एंड ई इज सबसेट ऑफ ई डैश, तो दोनों को मिलाने से ये मिल गया ई इज इक्वल टू ई डैश। सो सेट ई इज परफेक्ट इफ ई इक्वल टू ई डैश। ओके, ठीक है, अभी यहाँ रुकते हैं। तो अभी हमने देखी डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट सेट। सेट ई ऑफ मेट्रिक स्पेस इज कॉल्ड परफेक्ट इफ every limit point of E is point of E
and every point is limit point of E, मतलब E equal to E dash. Now let us see some examples. Suppose A is closed interval 0 1 and X is real metric space. अब यहाँ से हमको दिखता है कि yes, for this closed set every point is limit point of A, right? So A is closed, तो समझ में आ रहा है, and every point of A is limit point, hence A is a perfect set. Now another example, let B be semi open interval 0 1 and X is real metric space. Now here every point of B is a limit point, 0 is limit point, 1 is limit point, but every limit point is not a point of B, especially 0 is limit point, but 0 is not point of B. Every point of B is a limit point, but B is not closed. एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, every point of B is a limit point of B, but every limit point is not point of B, especially 0 is a limit point but it is not in D, therefore B is not a perfect set. Then set of all real numbers is a perfect set. Of course all real points will be limit points and all limit points are real points, so set of all real number is a perfect set. And set of all complex numbers Z such that mod Z is less than or equal to 1 is perfect in R square. बाउंड्री है यहाँ पर, तो सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है, ऑल द पॉइंट्स विल बी लिमिट पॉइंट्स. All the points of this unit circle will be limit points and all points of this unit circle are limit points. Limit points are in circle, points are limit points. Therefore this unit circle is perfect set in R square. अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सेट. बाउंडेड सेट इन मेट्रिक स्पेस. तो पहले थोड़ा सा ज्योमेट्री से समझते हैं. सपोज दिस इज अ मेट्रिक स्पेस X एंड दिस इज सेट E, सबसेट ऑफ X. ओके, नाउ लेट P बी अ पॉइंट ऑफ X. अब यदि ये फिक्स पॉइंट X का एक फिक्स पॉइंट है और इससे E के पॉइंट्स का डिस्टेंस हम फाइंड करें, ये डिस्टेंस से फाइंड करें P Q फॉर ऑल Q बिलोंग्स टू E, एंड इफ ऑल दिस डिस्टेंसेज आर लेस देन सम फाइनाइट नंबर, से M, रियल नंबर इट इज, then we say that set E is bounded set. ओके, तो पहले ये डेफिनेशन देख लेते हैं. ये डेफिनेशन को इस फॉर्म में देख लेते हैं. Let X be a metric space and E is subset of X. Then this set E is called bounded set if there exists a real number M and a point P in X such that distance of PQ is less than M for every Q belongs to E. यहाँ पर एक्सप्लेन किया फिगर से. इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये हो गया वर्ड्स में. इफ E is bounded set, then what happens? In a bounded set E, the distance of some fixed point of X, जिसको P नाम दिया था हमने, from any point of E, ये all E के पॉइंट्स को Q बोला था, is always less than some real number M. तो ये जो अभी फिगर से एक्सप्लेन किया, ये यहाँ पर वर्ड्स में एक्सप्लेन किया हुआ है. अच्छा, अब एक बात सुनिए कि ये जो पॉइंट P की बात हो रही है, विच इज़ पॉइंट ऑफ X, तो ये पॉइंट ऑफ X E में भी तो हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है. दिस कैन बी अ P. तो हम इसी से एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि यदि ये पॉइंट P E का ही पॉइंट हो
तो बाउंडेड सेट डिफाइन करते समय ऐसा भी डिफाइन किया जाता है कि ई के कोई भी दो पॉइंट का डिस्टेंस यदि फाइनाइट नंबर हो लेस देन सम कैपिटल एम, तो वी कैन से दैट ई इज अ बाउंडेड सेट। और यही डेफिनेशन से एक और डेफिनेशन निकल कर आती है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, क्योंकि बाकी के सारे डिस्टेंस तो छोटे होंगे इससे, तो दिस मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ई इज कॉल्ड एज डायमीटर ऑफ ई, एंड इफ डायमीटर इज लेस देन एम वी से दैट सेट ई इज बाउंडेड सेट इन मेट्रिक स्पेस एक्स। ओके, डायमीटर का कंसेप्ट आता है यहाँ से, डायमीटर ऑफ ए। जब रेगुलर फिगर होती है तो डायमीटर तो हमको पता है, सर्कल में डायमीटर क्या होता है, दिस इज डायमीटर ऑफ ए, ई। डायमीटर ऑफ ई इरेगुलर शेप यदि हो तो इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सेट। ओके, चलिए कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल देखते हैं अभी। ओपन इंटरवल ए बी इन आर, यस इट इज बाउंडेड सेट। कोई भी दो पॉइंट का यदि डिस्टेंस देखें तो ये दोनों का जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, अपर नंबर और लोअर नंबर, इनसे थोड़ा सा बड़ा भी यदि हम कोई m सपोज कर ले तो सारे डिस्टेंसेस उससे लेस होंगे, तो इट बिकम्स बाउंडेड सेट। सिमिलरली क्लोज इंटरवल यदि हो जाए, क्लोज इंटरवल हो जाए तब भी ये डेफिनेशन लागू होती है वहाँ पर कि ये दोनों का अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, इसका जो डिफरेंस होगा उससे थोड़ा सा बड़ा यदि नंबर m सपोज कर ले तो ऑल डिस्टेंस विल बी लेस देन दैट नंबर m, सो b इज बाउंडेड सेट इन R। Also, any finite subset of a metric space is bounded. Yes, this is a statement. Any finite subset, अब finite number of elements यदि रहेंगे तो उनके बीच का distance will be less than some finite real number. Another example, let's see with the set of point 0, or sorry 0 it is not there, 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by n, 1 by 10, 1 by 100, 1 by 1000 etc, 1001, 1002. So this is bounded set in R। इसका देखिए जो मैक्सिमम पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट तो यहाँ है, ये 1 हो गया, और जो पॉइंट्स जा रहे हैं ये सारे पॉइंट्स जा रहे हैं 0 के पास में। 0 के पास में काफ़ी इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स मिलेंगे, बाकी पॉइंट्स थोड़े गैप में हैं। तो यदि मान लो हम हमारा m ले लें तो वी कैन से दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ दिस सेट C इज लेस देन 2, क्योंकि ये 1 है, नेक्स्ट पॉइंट इज हाफ, वो यहाँ पर है। तो कोई भी दो पॉइंट का डिस्टेंस मैक्सिमम 1 होगा, तो यदि हम m2 ले लें तो इट बिकम्स अ बाउंडेड सेट। Next example, set of integers. Set of integers is not bounded. अब पहली बार आया एग्जाम्पल not bounded का, क्यों? Set of integers is not bounded. Set of integers is infinite set. तो उसमें finite मतलब लास्ट नंबर कौन सा है पता ही नहीं है, तो हम उनको कोई भी दो पॉइंट को बाउंड्री में नहीं रख सकते, एक फाइनाइट डिस्टेंस में नहीं रख सकते। Therefore it is not bounded set in real metric space. Okay. The next definition is closure of set E. काफ़ी कुछ हमने इससे रिलेटेड पढ़ा है इसके पहले, क्लोज्ड सेट पढ़ा है, डिराइव्ड सेट पढ़ा है, उनका सब यहाँ यूज होगा। देखिए, लेट x बी अ metric space and E is subset of x, then closure of E is denoted by E bar and it is defined as E union E dash। मतलब कोई सेट मेट्रिक स्पेस का हो तो वो कंप्लीट सेट और उसका डिराइव्ड सेट को यदि हम मर्ज कर दे यूनियन के साथ में, तो जो जनरेट होगा दैट इज क्लोजर ऑफ E विच इज डिनोटेड बाय E बार, वेयर E डैश डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, जिसके लिए डिराइव्ड सेट नाम भी दिया था हमने, डिराइव्ड सेट नाम दिया था। इसको जरा फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये मेट्रिक स्पेस हो गया से X,
और इसमें ले लिया हमने ई, एक सेट ले लिया। अब ये मान लेते हैं कि ये सारे पॉइंट्स है इसके, यानी पूरा कंप्लीट है। तो इसके अंदर के तो सारे पॉइंट्स लिमिट पॉइंट हो गए, ये ई के अंदर के सारे पॉइंट्स लिमिट पॉइंट हो गए। व्हाट अबाउट बाउंड्री पॉइंट्स? यदि बाउंड्री पे कोई पॉइंट लेते हैं, बाउंड्री पे पॉइंट लेते हैं तो भी लिमिट पॉइंट्स बन जाएंगे। बाउंड्री के पॉइंट्स लिमिट पॉइंट बन गए। अब देखो और एक और चीज़ इसमें ऐड करते हैं। बाउंड्री से बिल्कुल लगकर यदि पॉइंट होगा, बाउंड्री से लगकर यानी गैप ना हो, बाउंड्री से लगकर, तो वहाँ पर भी हम नेबरहुड यदि ड्रॉ करें तो दैट नेबरहुड विल कंटेन सम पॉइंट ऑफ ई अदर देन दैट पॉइंट। तो बाउंड्री से लगे जितने पॉइंट्स होंगे, लगे हुए एकदम बिल्कुल लगे हुए, ये सभी लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ई एंड ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ई, इनका जो यूनियन होगा, इट इज कॉल्ड एज क्लोजर ऑफ ई, क्लोजर ऑफ ई। इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल जनरली डिस्कस करते हैं। यदि आपने बिल्कुल हाउसफुल बस देखी होगी, हाउसफुल बस मतलब बस के अंदर तो सब पैसेंजर बैठे हुए हैं, अब इतनी हाउसफुल है कि उसमें लटके भी हुए हैं, गेट के वो जो बार को उसको पकड़कर लटके हुए हैं, विंडो की बार्स को पकड़कर लटके हुए हैं, बस की छत पर बैठे हुए हैं। तो बस के अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो सारे लिमिट पॉइंट्स हो गए अंदर के, और वो पॉइंट्स ऑफ ई है। अब ये जितने लटके हुए हैं बाहर, दे आर नॉट पॉइंट्स ऑफ ई, वो बस के अंदर के पैसेंजर नहीं माने जाएंगे, बट दे आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ ई। तो ऐसा इमेजिन करके देखो कि बस के अंदर तो पूरी खचाखच भीड़ भरी हुई है, और बस के चारों तरफ भी लोग लटके हुए हैं, सामने का विंडो छोड़ देते हैं, ड्राइवर को देखने के लिए आसानी होगी। तो ये जो पिक्चर माइंड के सामने आ रहा होगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोजर ऑफ बस। हाँ, इसको हम कह सकते हैं क्लोजर ऑफ बस। ओके, इसके कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में एग्जांपल देखें। लेट ए बी सेमी ओपन इंटरवल एंड बी, A is semi open interval and B is closed interval 0 1, and metric space is real metric space. Then what is closure of A? It is A union A dash and a derived set of A. अब A तो सेमी ओपन इंटरवल है और इसके लिमिट पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा, तो 0 इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ A, तो इसका जो डिराइव सेट होगा दैट इज क्लोज्ड इंटरवल 0 1। तो सेमी ओपन इंटरवल 0 1 union closed interval 0 1, union will give bigger set, so it is closed interval 0 1, right? So closure of A में A से एक ज़्यादा का पॉइंट दिख रहा है, तो closure is bigger than A, we can say that. For this B, closure of B is B union B dash. B union B dash, B is closed interval 0 1, union derived set is also closed interval 0 1, तो दोनों का union is closed interval 0 1, which is B itself, right? So आगे देखो इसको, अच्छा इसको हटाना पड़ेगा। Thus B closure is equal to B, B closure equal to B, and B is closed set because it contain all its limit points. So B is closed set, तो closed set की एक और नई डेफिनेशन मिल जाती है। Any subset E of metric space X is closed if closure of E equal to E, right? कुछ पर्टिकुलर सेट्स देख लेते हैं रियल मेट्रिक के। X सेट ऑफ रियल नंबर को मेट्रिक स्पेस माना है ना, X इज R, और सबसेट पहले Z लेते हैं, तो Z का क्लोजर इज इक्वल टू Z यूनियन Z डैश डिराइव सेट ऑफ Z, बट नो इंटीजर इज लिमिट पॉइंट ऑफ Z, मतलब Z के लिए डिराइव सेट इज एम्प्टी सेट, तो इट इज Z यूनियन फाई, Z यूनियन फाई इज Z, तो डेफिनेशन में फिट होता है। डेफिनेशन क्या थी हमारी, एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा।
यही तो थी डेफिनेशन तो यही है, राइट। ई इज क्लोज्ड इफ ई बार इक्वल टू ई। तो z बार इक्वल टू z दिख रहा है, तो वी कैन से दैट z इज क्लोज्ड सेट, z इज क्लोज्ड सेट, राइट। नाउ q बार की बात करते हैं, तो q बार इज q यूनियन q डैश। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए ऑल रियल नंबर्स आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ q, क्योंकि कोई भी रियल नंबर पर यदि हम नेबरहुड ड्रॉ किए थे, इसके पहले ये एग्जांपल डिस्कस किए थे, तो इट कंटेन रैशनल नंबर। तो डिराइव्ड सेट फॉर रैशनल नंबर इज R, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो Q यूनियन QR विच इज इक्वल टू R। तो यहाँ पर तो हमको Q बार इज इक्वल टू R दिख रहा है, Q बार इज इक्वल टू Q नहीं है, एंड देयरफॉर Q बार इज नॉट इक्वल टू Q, हेंस Q इज नॉट क्लोज सेट। ये करेक्शन होना चाहिए, Q इज नॉट क्लोज्ड सेट। ओके, यहाँ से इसको कट किया जाना चाहिए और अलग से लिखा जाना चाहिए Q इज नॉट क्लोज्ड, Q इज नॉट क्लोज्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सेट ऑफ रियल नंबर्स को देख लेते हैं। ये करेक्शन होना चाहिए, Q इज नॉट क्लोज्ड, Q इज नॉट क्लोज्ड। ये ऐसे करेक्शन पढ़ते समय समझ में आते हैं। व्हाट इज R बार? R यूनियन R बार, R यूनियन R डैश। तो R डैश इन डिराइव सेट ऑफ R इज R itself, hence R bar is equal to R union R, which is equal to R. Therefore, R is closed. Yes, all right. This is correct. R is closed, right? So, set of integers is closed. Set of complete real numbers is closed, but set of rational number is not closed set. Next definition is dense set. Let X be a metric space and E is subset of X. Then set E is called dense set in X if every point of X is a limit point of E. देखिए क्या बात हो रही है, every point of X is a limit point of E or a point of E or both. यदि मेट्रिक स्पेस के सभी पॉइंट सेट E के लिमिट पॉइंट हो या E का पॉइंट हो, then we say that E is dense set in X, right? तो symbolic notation में it is a subset E of X is dense in X if E union E dash, E यानी खुद के पॉइंट्स हो गए, E dash यानी लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन हो गया, तो E union E dash इक्वल टू X, एंड E union E dash के लिए भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दिस इज डिफाइंड एज क्लोजर ऑफ E, दैट मीन्स इफ क्लोजर ऑफ E इज कंप्लीट X, then E is called dense set. इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखें हमने, यहाँ दिख रहा है ना, Z बार इक्वल टू Z बट Q बार इज नॉट इक्वल टू Q, राइट? तो देयरफॉर पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। Example, let metric space X be the set of real numbers and Q and Z with the set of Z is set of integers and Q is set of rational numbers. Then what happens? They are subset of R. Or all right, Z bar equal to Z, which is not equal to X, right? Z bar equal to Z, closure is Z, which is not equal to R. Therefore, we say that Z is not dense in R, whereas Z is not dense. Z is not dense in R, whereas Q bar, ये अभी देखा था थोड़ी देर पहले हमने, is equal to R, which is equal to metric space X, which is R here. तो Q bar equal to metric space. Therefore, Q set of rational numbers is dense in R.
तो इस तरह से ये अभी तक के हमने केवल डेफिनेशंस पढ़ी थी ये टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने के लिए। अब इसके बाद रिजल्ट्स है, थ्योरम्स है, और वो सारे थ्योरम्स जो अभी तक के डेफिनेशंस डिस्कस हुए हैं उन पर बेस्ड है। तो आगे बढ़ने के लिए सभी डेफिनेशंस का बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग, विजुअलाइजेशन होना ज़रूरी है। आप अपने लेवल पर इसे रिवाइज कीजिएगा। अगले वीडियोस में हम थ्योरम्स डिस्कस करेंगे उनके प्रूफ्स के साथ में। यहाँ स्टॉप करते हैं इसको, मिलेंगे अगले वीडियोस में रिजल्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय गणित।